وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے ایران اسرائیل جنگ بندی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت کی تعریف کی۔ شہباز شریف نے پاک بھارت جنگ بندی میں امریکی کردار پر شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور امریکہ کا تجارتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ غزہ میں وحشت اور بربریت کی طویل رات ختم ہونے کے قریب نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی حملے 2 ہفتے میں ختم ہو جائیں گے۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا امریکی صدر اور اسرائیل کے وزیر اعظم غزہ جنگ ختم کرنے پر رضامند ہو گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے فون کال پر غزہ جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ 4 عرب ریاستیں حماس کی جگہ غزہ پر مشترکہ طور پر حکومت کریں گی۔ حماس کی قیادت کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ تمام قیدیوں کو رہائی ملے گی۔ There was a great deal of irresponsible reporting based on leaks, preliminary information in low confidence. Again, when someone leaks something, they do it with an agenda. Just the little portion that makes it seem like maybe the strike wasn't effective. Then you start a news cycle, whether it's the Washington Post or Fox News or CNN or MSNBC, you start a news cycle. ایرانی ایٹمی تنصیبات کی تباہی، پینٹاگون کی ویڈیو سے گواہی۔ امریکی وزیر دفاع کا اپنے دعووں کا پھر دفاع۔ پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ بعض چینلز تنصیبات تباہ نہ ہونے کی جھوٹی خبریں چلا رہے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے خلاف انتہائی کامیاب حملے کیے۔ آپریشن کے نتیجے میں ایران اسرائیل جنگ بندی ہوئی۔ یہ تاریخی طور پر کامیاب حملہ تھا۔ امریکہ کو جشن منانا چاہیے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف جنرل ڈین کین نے کہا ایران پر حملہ 15 سالہ منصوبہ بندی کے بعد کیا گیا۔ فرد و تنصیبات پر گرانے کے لیے خصوصی بنکر بسٹر بم بنایا۔ The cap was forcibly removed by the first weapon, and the main shaft was uncovered. Weapons 2, 3, 4, 5 were tasked to enter the main shaft, move down into the complex at greater than 1,000 feet per second, and explode in the mission space. جوہری تنصیبات پر حملے میں امریکہ کو کوئی کامیابی نہیں ملی۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کا ویڈیو بیان، کہا کہ امریکہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر کے کوئی اہم مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ امریکہ کی فوجی کارروائی جوہری معاملات کے متعلق نہیں، ہتھیار ڈالنے کے بارے میں تھی۔ امریکہ صہیونی حکومت کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے جنگ میں کودا۔ 9 کروڑ ایرانیوں نے متحد ہو کر فوج کا ساتھ دیا۔ ایران نے قطر میں امریکی اڈے کو نشانہ بنا کر بڑا نقصان پہنچایا۔ ایران کی IAEA سے یک طرفہ علیحدگی، روس کو تشویش۔ ایران کی IAEA سے تعاون معطل کرنے کے بل کی توثیق۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کہتے ہیں ایران عالمی جوہری ادارے کے ساتھ تعاون جاری رکھے۔ ایران کا پرامن ایٹمی توانائی کا حق تسلیم کیا جاتا ہے۔ IAEA کے ڈائریکٹر رافیل گروسی نے کہا ایران کو انسپیکٹرز کی رسائی روکنے کا کوئی حق نہیں۔ ایرانی اقدام ایک نئے بحران کو جنم دے سکتا ہے۔ ایران میں حکومت کے مخالفوں، غداروں اور جاسوسوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ملک بھر میں گرفتاریوں کا سلسلہ تیز۔ ایرانی انسانی حقوق گروپ ہرنا کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک 705 افراد کو گرفتار کیا جا چکا۔ گزشتہ روز مزید 3 افراد کو پھانسی دے دی گئی۔ سزائے موت پانے والے تینوں افراد کا تعلق کرد نسل سے تھا۔ اسرائیل بند کرے تو ہم پھر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور انہوں نے پھر یہ جنگ بند کرائی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ جنگ بند ہو گئی اور اس کا جو مزید بے پناہ نقصان خدا نخواستہ پہنچ سکتا تھا نہ صرف ایران اور خطے میں نہیں، پوری دنیا میں۔ ایران اسرائیل جنگ بندی خوش آئند ہے، پاکستان نے ایران کی بھرپور حمایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا ایرانی قوم نے جرأت کا مظاہرہ کیا، جنگ رکوانے میں سعودی عرب نے اہم کردار ادا کیا، پاک فوج نے بھارت کو شکست فاش دی، فتنہ الخوارج پر کاری ضرب لگائی۔ امریکی صدر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کھلے دل سے تعریف کی، نئے بجٹ سے معیشت مزید مستحکم ہوگی، معاونت پر اتحادیوں کے شکر گزار ہیں۔
भारत को सिफारती महाज पर एक और सुबकी का सामना। SCO का पहलगाम वाक़े पर भारतीय झूठा प्रोपेगेंडा तस्लीम करने से इनकार। भारत ने इजलास के मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। चीन की दारुल-हुकूमत बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का इजलास। पहलगाम मामले पर भारत सिफारती तौर पर बिल्कुल तन्हाई नजर आया। इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, भारतीय वफ़द की क़यादत राजनाथ सिंह ने की। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का 22वां इजलास चिंगडाओ में इजलास की सदारत चीन ने की। तमाम रुकन मुल्कों के दिफाई सरबराहान शरीक। तंजीम के सेक्रेटरी जनरल ने सिक्योरिटी ताउन पर जोर दिया। इजलास में इलाकाई और आलमी सलामती पर तबादला ख्याल, फौजी ताउन, मुश्तरका मशकों और तिब्बी इश्तराक पर बातचीत। तंजीमी इस्लाहात और सियासी और सिफारती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। कौमी असम्बली ने माली साल 2025-26 का बजट मंजूर कर लिया। ऐवान फाइनेंस बिल 2025 की शिकवार मंजूरी दी। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स की शरह 10% कर दी गई। सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी से मुताल्लिक तरामीम मंजूर। सालाना 1 करोड़ से ज़्यादा पेंशन पर इनकम टैक्स आयद। फाइनेंस बिल इनकम टैक्स पे वज़ीर ख़जाना के पेश करदा तरामीम कसरत मंजूर। अपोजिशन की फाइनेंस बिल तरामीम कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई। आइंदा माली साल के लिए FBR का 14,131 अरब रुपए का टैक्स हदफ मंजूर। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,147 अरब होगा। NFC के तहत काबिल तकसीम मुहासिल के तहत सूबों को 8,206 अरब मिलेंगे। सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब, पेंशन के लिए 1,055 अरब, दिफा के लिए 2,550 अरब मंजूर। सरकारी मुलाजमों को तनख्वाहों के लिए 971 अरब। वफाकी तरक्याती बजट 1,000 अरब रुपए का होगा। हम इस हुकूमत को अप्रिशिएट करते हैं कि जब से वज़ीर आज़म साहब आया है हर बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा हुआ है और इस बजट में सबसे ज्यादा 20% इजाफा हो रहा है। 10 लाख तक जो आपके सैलरी क्लासेस है उनके लिए जो 10 लाख तक अब इजाफा किया गया है, 6 लाख से लेके 12 लाख तक ये अवाम को फायदा दिया जा रहा है, सैलरी क्लास को फायदा दिया जा रहा है इस बजट में। जनाब स्पीकर, पीपल्स पार्टी वफाकी बजट को दिल से कबूल करती है। बिलावल भुट्टो सरदारी के कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले कि हुकूमत ने BISP पर उनकी तजावीज़ को मान लिया है। वज़ीर आज़म ने सबसे ज़्यादा BISP के फंड में इजाफा किया। बजट में तनख्वाहदारों के लिए टैक्स में कमी की गई। हुकूमत ने सोलर टैक्स में 50% कमी कर दी गई। पीपल्स पार्टी के एतराज़ के बाद FBR कवानीन में तब्दीली लाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना के मशकूर हैं। पंजाब का आइंदा माली साल का 5,300 अरब रुपए का बजट मंजूर। पंजाब असेंबली ने फाइनेंस बिल 2025 भी कसरत राय से मंजूर कर लिया। 4,329 अरब से ज़ायद के मुतालबात ज़र मंजूर। ओपोजिशन की 8 महकमों से मुताल्लिक कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद। पुलिस के लिए 200 अरब, तालीम के लिए 137 अरब के मुतालबात ज़र मंजूर किए गए। सेहत के लिए 258 अरब, पेंशन के लिए 462 अरब, तरक्याती मंसूबों के लिए 910 अरब की मंजूरी। पाकिस्तान में मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आ गया। यौम आशूर इतवार 6 जुलाई को होगा। कोयटा में मरकज़ी इत्तेहाल कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। कहा कि मुल्क के कई इलाकों से मुहर्रम उल हराम 1447 हिजरी का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हैं। नए हिजरी साल के आगाज पर सदर और वज़ीर आज़म के पैगामात। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, दुआ है नया हिजरी साल वतन अजीज़ में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम लेकर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, दुआ है कि हिजरी साल सबके लिए बाइस रहमत हो। मुहर्रम उल हराम इस्लाफ की बेमिसाल कुर्बानियों की याद दिलाता है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रम और हराम की सिक्योरिटी प्लान पर इजलास। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन की बंदिश का फैसला सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मुहर्रम और हराम के दौरान सूबा भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ और फ़िरका वाराना पोस्ट पर गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि मेरे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है कि हफ्ते में एक मुलाकात मेरी लाजमी कराई जाए, उसके बावजूद सबसे कम मुलाकातें मेरी हुई हैं। इमरान खान ने कहा था कि बजट को पास करने से पहले मुझसे मीटिंग की जाए और उन्होंने कमेटी जो आपके सामने खड़ी हुई है उस कमेटी के नाम बताए थे। उसी मुलाकात के बाद फौरन आने के बाद यहीं पे खड़े होकर मैंने वो अनाउंस कर दिए थे। बानी PTI से मुलाकात हमारा सियासी और आईनी हक है। अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात से बार बार रोका जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा में आईनी बहरान से बचने के लिए बजट मंजूर किया। बजट पर उनकी पार्टी के बानी का मौक़िफ़ सियासी हक है। कोई बानी PTI के माइनस की बात नहीं कर सकता। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर में बादल खुलकर बरसे। इकबाल टाउन, समनाबाद, गुलबर्ग, गड़ी शाहूर, हरबंसपुरा और दीगर इलाकों में बारिश हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बालाकोट, गुजरांवाला, सियालकोट, मियांवाली, खुशाब में बादल बरसे। शेखुपुरा, उकाड़ा, बहावल नगर, मुजफ्फरगढ़, अहमदपुर शर्किया में भी बारिश। मानसून की पहली स्पेल में मुख्तलिफ इलाकों में 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। और एशियन 6 रेड और टीम स्नूकर चैंपियनशिप पाकिस्तान की कामयाबी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान टीम 1 ने अपने दोनों मैचेस जीत लिए। पाकिस्तान टीम 2 ने अपने पहले मैच में कामयाबी हासिल कर ली। श्रीलंका के शहर कोलंबो में पाकिस्तान टीम 1 ने कंबोडिया को 3-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान टीम 2 ने बहरीन को 3-2 से हराया। पाकिस्तान टीम 1 ने दूसरे मैच में कतर को 3-1 से शिकस्त दी।